कि हर कोई सुंदर दिखना चाहता है, हर कोई कॉन्फिडेंट दिखना चाहता है, और वो उनका राइट भी है। तो जो एज दिख रही हो उससे थोड़ा बहुत चलता है, बट ऐसा ना लगे कि हम सीधा ही बहुत पीछे चले गए। सही टाइम पे यूज़ करेंगे और कितना यूज़ करना है वो हमें ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, दे आर सो मच कन्फ्यूज्ड, दे गेट दोज रील्स एंड दे से कैन आई लुक लाइक दिस मैम, कैन आई लुक लाइक दिस। बहुत सारे लोग एकदम जंप करते हैं, ओवरनाइट पतला होना चाहते हैं, पीपल डोंट वांट टू एक्सरसाइज और मेंटेन अ गुड, अल्कोहल पीते हैं, है ना, सब कुछ। उस सब के बावजूद वो चाहते थे कि बस हम इंजेक्शंस लगवाएं और पतले हो जाएं। वो सन के अलावा हमारे ये लाइट्स हैं जो कि एलईडी लाइट्स हैं, ये भी हमारे स्किन पे इम्पैक्ट करती हैं। कच्चा दूध, तो मुझे लगता है उससे बेस्ट क्लींजर कोई नहीं। Hello friends, today I'm here again with an amazing episode of our podcast which is Unfolding Wisdom. We have a guest. She has unfolded years of her experience and knowledge with us, and I'm sure that a lot of people are gonna relate to her. A lot of people are gonna get a lot of knowledge from this podcast because it's related to something very basic, and we all want to look beautiful and presentable. We all want to have a good skin, good smile, and good appearance. Obviously there is nothing wrong in that because we want to be confident. So that's why today we have Dr. Helene Oberoi ma'am. She's an orofacial surgeon and a medicosmetologist trained from US and Greece, and she has over 18 years of experience in this field. A lot of celebrities and a lot of people come to her regularly for the consultation for their skin. So I think she is the best person to know about all the myths and facts that we see on social media, and maybe they all are not true. So she is the right person to bust all these myths and facts and to guide us with her knowledge and experience. So let's start the podcast with ma'am. Thank you so much, and I hope you are gonna like this episode. Hello ma'am, how are you? Hi Durga, I'm good. How are you? I'm good, thank you so much. Thank you so much for coming on this podcast ma'am, because I know you have a very busy schedule, but still I wanted to do this because आजकल बहुत सारे myths and facts हैं हमारी स्किन केयर को लेके, स्किन ट्रीटमेंट्स को लेके जो लोग कराते हैं, because obviously everyone wants to look beautiful, no judgments on that, क्योंकि सबको सुंदर दिखना है, and if they can afford it, if they want it, they can go for the treatments. But सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है that a lot of people, they don't know what's right for them, what's wrong for them. So for this I wanted to do this podcast with you, so thank you so much. Thank you Durga, and I welcome you at Cosmic and Smiles, and I hope at the end of this podcast you and all the ones who are watching me, they'll be aware of what all is there in cosmetology and aesthetics. Thank you ma'am. So ma'am, you are one of the best cosmetologists and smile designers in Tri-City, and जैसा मैंने देखा, a lot of celebrities have also got treatment done from you. So I think you are the best person to talk about this subject. So अभी स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन से कि what is a cosmetology and what does a cosmetologist do? Okay, so that is I guess the very right and best question which you are asking. So आजकल बहुत ज़्यादा there was a confusion between dermatology and cosmetology. So basically what dermatologists do, they are doctors who are designed to treat diseases. बहुत सारी जैसे हमारे स्किन पे एलर्जीज़, स्किन की डिजीज़ेज़, डायबिटिक फुट हो गया, ऐसे जो बहुत सारी दवाइयों से रिलेटेड जो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, दैट डर्मेटोलॉजिस्ट डू. अनलाइक कॉस्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजी इज़ बेसिकली लुकिंग यंगर. एंटी एजिंग में क्या क्या आता है, हम कैसे सुंदर दिख सकते हैं, हम किस राइट एज पे कौन कौन से प्रोसीजर्स नॉन सर्जिकल करा सकते हैं जो कि हमारी एज को सीधा 10 साल, हमारे पास जो जितने पेशेंट्स आते हैं वो आके बोलते हैं कि हम 10 साल यंग कैसे दिख सकते हैं. सो दिस इज़ cosmetology is basically enhancing your profiles, your facial beauty, looking younger, and so many anti-aging therapies which makes you look long lasting. So that is cosmetology. Okay, thank you so much for explaining. You're welcome. So ma'am, you also do smile designing. What is that? Why do people do that?
So okay, smile designing is basically related to our smiles. मुझे ऐसा लगता है कि कॉस्मेटोलॉजी से पहले भी जैसे ही हम आपके सामने कोई आएगा, what actually attracts you the most, that is your smile. So there are various smile designing procedures जिसमें कि हम smile बहुत सारी ऐसे कर देते हैं कि पेशेंट्स आके कहते हैं you want to look like this celebrity or that, मेरे को शाहरुख खान जैसी स्माइल चाहिए या मुझे इस मॉडल जैसी चाहिए. So that they are very good procedures जो कि हम विनेयर्स के साथ करते हैं. फ्रंट वाले टीथ जितने कि जैसे कि आपकी स्माइल के लेवल अलग होगा, मेरा अलग होगा, तो जितना उसके बीच में हमें टीथ दिखाई दे रहे होते हैं, टिल दैट सो वी डिज़ाइन ऑल दोज टीथ विद विनेयर्स. दैट्स अ वेरी गुड शेल लाइक, एकदम क्रिस्टल लाइक दांत जैसी कैप्स होती हैं जो कि हम बहुत मिनिमल, कोई ग्राइंडिंग नहीं करनी पड़ती है, मिनिमल अब्रेजन करके हम वो विनेयर्स के साथ करेक्ट करते हैं. दैट इज़ वन प्रोसीजर. सेकेंड इज़ आजकल लोग तारे नहीं लगाना चाहते हैं, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दोज रीजंस जो कि बुरी लगती हैं, मेटल की वायर्स. फॉर दैट देयर इज़ अ वेरी गुड प्रोसीजर, आपने सुना भी होगा, दैट इज़ इनविजिलाइन, दैट इज़ बाय अलाइनर्स. तो बिना किसी तारों से, बिना किसी दांत को निकाले, सो वी जस्ट डिज़ाइन योर स्माइल विद अलाइनर्स. जो कि देयर आर सो मेनी पेशेंट्स जिस दिन उनकी शादी हो रही होती है, लाइक ब्राइड एंड ग्रूम्स, उन्होंने उस दिन भी अलाइनर्स डाले होते हैं, लोगों को वो भी पता नहीं लगता. सो दीज आर टू प्रोसीजर्स जिससे हम स्माइल डिज़ाइन करते हैं. Okay, and both are non-surgical procedures. Completely non-surgical. Even the cosmetologist procedures. So majorly, like on our panel we have plastic surgeons working, but majorly 70-75% हम non-surgical से करते हैं all the aesthetic procedures. Okay. So ma'am, you told us about same day implants and smile levels and all this. I'm not aware of this. For example, अगर मुझे किसी सेलिब्रिटी की तरह स्माइल लेनी है तो I can do that. Is it? Yes. तो लोग हमारे पास वही पिक्चर्स लेके आते हैं एंड वी गाइड देम. तो हमारे पास डेंटल स्कैनर्स होते हैं जिसमें हम सारे दांत पहले स्कैन करते हैं, उनकी अलाइनमेंट देखते हैं कि हमारे पीछे के दांत मोलर्स कहाँ हैं, मिड प्री मोलर्स कहाँ हैं, एंटीरियर फ्रंट वाले कहाँ हैं. अकॉर्डिंगली आपको जो स्माइल चाहिए होती है बिल्कुल ऑलमोस्ट उसके नज़दीक आके हम आपको बिफोर वाली स्माइल पहले ही डेंटल स्कैनर में दिखा देते हैं एंड देन वी गो अहेड. इससे क्या होता है, 3-4 तरह की ऑप्शंस आपके पास आ जाती है कि आपको इस कलर ऑफ टीथ चाहिए तो हम वाइटनिंग करते हैं, इस अलाइनमेंट में चाहिए तो हम उसके हिसाब से आगे पीछे दांत सही करते हैं. सो बिफोर यू गो अहेड आपके सामने आपकी पोस्ट वाली स्माइल पहले ही होती है कि आपको इस तरह की स्माइल दी थी. एंड येस, यू talked about same day implant, and that is a revolutionary procedure which we are just doing in the Tri-City. उसमें क्या है, हम लोग इम्प्लांट यूजुअली आपको जो मिसिंग दांत में हम वो स्क्रू डाल के जो इम्प्लांट डालते थे तो यूजुअली वेटिंग पीरियड मिनिमम होता था 3 महीने, मैक्सिमम 6 महीने. बट ये जो एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी आई है इसमें हमें सेम डे दांत डालते हैं, सेम डे इम्प्लांट, सेम डे दांत. तो 24 आवर्स में वी गिव बैक योर स्माइल. तो हमारे पास दूर दूर से पंजाब, हिमाचल, ग्लोबली लोग आते हैं 24 घंटे में. आज हमारा मॉर्निंग में सर्जरी शुरू हुआ, शाम को हम ट्रायल करते हैं, अगले दिन मॉर्निंग हम आपको दांत दे देते हैं. सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग एंड आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू वॉक इन फॉर दिस प्रोसीजर. दैट इज़ सेम डे इम्प्लांट इन टूथ एंड दैट इज़ कॉल्ड कॉर्टिकल इम्प्लांटोलॉजी. Nice. So this is very interesting. For example, for some reason, if I don't like my smile or if anybody feel the same way, so वो आके अपना smile design करवा सकते हैं so that they look more confident while they are smiling. Because I think it's a big factor while we are talking to anyone. True. बिफ़ोर कि हम कोई फेशियल कराएं या अपनी स्किन का, तो सबसे पहले जो एक सामने अगर कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा है, अगर कोई किसी भी बड़ी जॉब के लिए जा रहा है या वो किसी ने प्रेजेंट होना है, फॉरगेट अबाउट सेलिब्रिटीज़, उनको तो बहुत अच्छा स्क्रीन पे लिखना ही है, बट नॉर्मल डे टू डे लाइफ में अगर हमारी स्माइल अच्छी नहीं है तो हम कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे. वी आर नॉट कॉन्फिडेंट इन आवर स्किन. सो दैट्स द रीज़न आवर क्लिनिक इज़ equipped with all the smile designing things and all the aesthetic. तो head to toe makeover हम आपको यहाँ पे करके देते हैं. So smile design का जो प्रोसीजर रहता है, how much time does it take generally? So usually डिपेंड करता है. अगर एक दांत है तो हम 20 मिनट्स में इम्प्लांट डाल देते हैं. इफ़ वी आर डूइंग फुल माउथ रिहैब, पूरे मुंह में लगाने हैं, तो 3 से 4 घंटे की सर्जरी होती है. और इवनिंग में हम आपको आपका कलर ऑफ द टीथ आपसे चेक करके हम लोग वो ट्रायल दे देते हैं. एंड नेक्स्ट, सो एज आई सेड 24 आवर्स में हम आपको दांत डिलीवर कर देते हैं.
ओके ओके। सो मैम आपके पास तो काफ़ी लोग आते होंगे स्माइल डिज़ाइन के लिए, तो किस तरह के लोग आते हैं? लाइक जनरली फीमेल मेल या इक्वली प्रोपोर्शन में लोग आते हैं? एक्चुअली एज ग्रुप भी? हाँ, एज ग्रुप हमें पहले लगता होता था कि यंगस्टर्स ज़्यादा अवेयर है, बट अनलाइकली मेरे पास 50s वाले 40s वाले, एवरीवन वांट्स टू लुक गुड, एवरीवन वांट्स टू लुक ब्यूटीफुल, एस्थेटिकली हर कोई अच्छा लगना चाहता है। तो मेरे पास हर एज ग्रुप के लोग आते हैं, स्टार्टिंग लाइक अर्ली 20 से लेके टिल 70s। और अभी हमने थोड़ा टाइम पहले एक 88 ईयर्स की आंटी हमारे पास अब्रॉड से आई, और आई वो इम्प्लांट कराने थी कि इम्प्लांट से, बट व्हेन शी रेड अबाउट दिस स्माइल डिज़ाइनिंग तो वो इम्प्लांट्स के साथ स्माइल डिज़ाइनिंग भी करा के गई। सो इट्स लाइक आज का एरा जो कि हर कोई सुंदर दिखना चाहता है, हर कोई कॉन्फिडेंट दिखना चाहता है, और वो उनका राइट भी है। एनीवन वांट्स टू लुक सो प्रेजेंटेबल एकदम सामने। सो ऑल एज ग्रुप्स वॉक इन यूजुअली। Okay, so it's more of confidence and they want to look beautiful. I have like a general question. Why is that कि हमें अपनी एज के अकॉर्डिंग नहीं दिखना? फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम 20 years, obviously I'm gonna look like that even at 40s. But for example, if I'm 50-60 years old, why do I want to look like 30s? Is it because of the social media or celebrity effects? What is that? What do you think? So I feel, see, as a cosmetologist, like if you will talk about myself, patients come and they ask about my age and then they ask me like what all you are doing, right? तो मुझे ऐसे लगता है यस, आजकल पोस्ट कोविड के बाद इतना सोशल मीडिया इतना ज़्यादा आ गया है कि हमें कहीं पे भी प्रेजेंट करना है, हमें किसी तरह ड्रेसअप करना है। बट देयर आर दुर्गा पीपल हु वांट टू एज ग्रेसफुली एज वेल। तो बहुत सारे लोग जो मेरे पास आते हैं तो उसमें मैं उनको गाइड यही करती हूँ कि मैं आपको 70s में हो तो मैं 50 तो नहीं कर पाऊँगी, बट डेफिनेटली आई विल मेक यू एज ग्रेसफुली। आई विल डू सम काइंड ऑफ रिकंटूरिंग थिंग्स, या जैसे कि कोलेजन इलास्टिन बहुत लॉस हो जाता है इस एज में, आजकल तो जल्दी भी हो जाता है क्योंकि हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, राइट? तो बट जो एजिंग वाले आते हैं, आई टेल देम टू मेक देम एंड आई मेक देम अंडरस्टैंड टू लुक ग्रेसफुली। और आप एजिंग ग्रेसफुली करेंगे तो आपको कुछ भी एकदम ना आर्टिफिशियल और डिप्लोमेटिक नहीं लगेगा। अगर सो हेयर आई लाइक एम्फसाइज ऑन टॉकिंग अबाउट बोटॉक्स, है ना? हम बोटॉक्स आपने सुना होगा, फिलर्स करते हैं, तो हम ऐसे ही नहीं कर देते हैं कि हम उसको बिल्कुल बैक एज पे ले जाएं, नहीं। सो मुझे पर्सनली मुझे ऐसे लगता है दैट इवन लाइक आई एम इन माई लाइक आई हैव टर्न्ड 40, तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्रेसफुली एज करना चाहिए और ऐसा दिखना चाहिए कि हम हर स्टेप पे जैसे जैसे आगे बढ़ें तो हम ग्रेसफुल लगें, रादर देन कुछ भी आर्टिफिशियल और डिप्लोमेटिक दैट डजंट सूट्स आवर पर्सनैलिटी। Yeah, that's it. So by artificial you mean products like we should. So by artificial means कि हम कुछ भी फेस पे लगा लें। हम अगर हमारे को फिलर की ज़रूरत ही एक है, बट हम कई बार वी इंसिस्ट आवर डॉक्टर नो दैट आई वांट माई फेस टू बी सो मच प्लेन, मतलब मुझे बिल्कुल ये वाले नॉर्मल कंटूर्स भी नहीं चाहिए, नॉर्मल फीचर्स भी नहीं चाहिए। तो ऐसी चीज़ में कई बार लोग हमें इंसिस्ट करते भी हैं, बट आई पर्सनली गाइड देम टू लुक ग्रेसफुल। तो जो एज दिख रही हो उससे थोड़ा बहुत चलता है, बट ऐसा ना लगे कि हम सीधा ही बहुत पीछे चले गए। Right. Okay, thank you, ma'am. So I got idea of this. So, ma'am, in India, I have started hearing about these things. I think for last 8 to 10 years. Before that, it was not that usual कि normal लोग भी ये प्रोसीजर्स या इन चीज़ों के बारे में सोचते थे, बिकॉज इट वॉज अ सेलिब्रिटी काइंड ऑफ थिंग। सो अभी लोग काफ़ी अवेयर हो रहे हैं एंड इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज ऑब्वियसली I also personally feel कि if you are looking good, you are more confident. And if you are confident, then you are going to do a good job, whatever you are doing, whether it's a job, business, talking to anyone, or maybe presenting yourself. So what do you think social media helped people to get awareness about this particular thing? Yes, certainly. मतलब मुझे ऐसे लगता है even if we talk about our beauty, our aesthetics, or even about our business, social media ने इतना help करा है influencers, like I get so many calls for like influencing करने के लिए कि ये आप मैम ऐसे कोलैबोरेट कर जाओ और इसके बारे में बताओ। यस, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हमारा बच्चे से लेके, हमें पहले लगता था बच्चे ज़्यादा फ़ोन पे नहीं रहते हैं, बट अगर मैं बात करूँ अपने घर की तो मैं देखती हूँ ओल्डीज़ दे आर मोर ऑन फोन।
तो 90% तो उनका सारा टाइम वंस दे आर डन फ्रॉम देयर हाउस होल्ड कॉर्स, है ना, तो वो सारा फ़ोन देख रहे होते हैं. तो हम जब फ़ोन खोलते हैं तो एल्गोरिदम इतना अच्छा फ़ोन कैच करता है कि हमारा किस चीज़ में इंटरेस्ट है. अगर हमारा कुकिंग में इंटरेस्ट है तो हमारे पास उसके इतने सारे आ जाएंगे, है ना, इतने सारे लोग दिखने लग जाएंगे. हुआ कुकिंग, स्किन केयर देखेंगे तो, हेयर केयर देखेंगे तो, एस्थेटिक्स देखेंगे तो. ये सोशल मीडिया के मुझे ऐसे लगता है कि बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बट मुझे कॉन्ट्ररी ये भी लगता है कि अगर हम उसको सही तरीके से यूज़ करेंगे और सही टाइम पे यूज़ करेंगे और कितना यूज़ करना है वो हमें ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा. क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, दे आर सो मच कन्फ्यूज्ड, दे गेट दोज रील्स एंड दे से कैन आई लुक लाइक दिस मैम, कैन आई लुक लाइक दिस, क्या ऐसा भी हो सकता है. अभी आपने थोड़ा टाइम पहले ओजेम्पिक के बारे में सुना होगा, तो ओजेम्पिक का कितना हैज़ार्डस, आज अगर मैं एज अ डॉक्टर बात करूँ, उसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं. तो मैं दूर दूर तक नाम भी नहीं लूँगी, बट पीपल केम टू मी बिकॉज आर्स इज़ ऑल्सो अ वेट लॉस सेंटर. बट जब उसमें लोग आए तो इतना सारा ओजेम्पिक का लेके आए विच वॉज अ टोटल नो. कैन यू एक्सप्लेन what is Ozempic? So Ozempic was अभी थोड़ा टाइम पहले पीपल सॉ करण जौहर और उनको लगा कि वो ड्रास्टिकली हाउ ही जस्ट गॉट स्किन डाउन टू इतना, और उसके पीछे इतना न्यूज़ आया और हमारे पास तो ये चीज़ें सबसे पहले पहुंच जाती हैं बीइंग इनटू दिस लाइक इंडस्ट्री. तो Ozempic जब देखा, दोज वर इंजेक्शंस यूज्ड टू क्योर डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, दैट इज़ HbA1c, जिसका वो डायबिटीज़ बहुत क्रॉस हो जाता है. उसके रीजंस क्या है? क्योंकि वेट इतना बड़ा होता है, हाइपरटेंशन होती है. तो बेसिकली वो वाला जो वेट बढ़ा हुआ है दैट इज़ नॉट द सेडेंट्री लाइफस्टाइल वाला वेट. ये दोनों वेट गेन में फ़र्क है. तो जो शुगर से वेट बढ़ा हुआ था बहुत ज़्यादा, उसको कंट्रोल करने के लिए Ozempic बढ़ा. दो Ozempic हैड देयर ओन प्रॉस एंड कॉन्स. लोगों ने उसको वेट लॉस के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया एंड देयर वाज सो मेनी बैक एंड पे जिनको बहुत सारे हेल्थ हैज़ार्ड्स हो गए. किसी का BP शूट कर गया बिकॉज उसकी कॉम्पोजिशन तो किसके साथ मैच कर रही थी? डायबिटीज़ के साथ, टाइप 2 डायबिटीज़, दैट्स अनदर सेडेंट्री लाइफस्टाइल डायबिटीज़. तो इसलिए हमें, दैट वाज ऑन सोशल मीडिया. अगर हम ऐसे बात करें, जब सोशल मीडिया नहीं था तो ऐसी जो इन्फॉर्मेशन रिस्ट्रिक्टेड रहती थी वो सिर्फ डॉक्टर्स तक रहती थी या हॉस्पिटल्स में रहती थी. तो ये इन चीज़ों का काफ़ी हद तक नुकसान भी हुआ. बट अब जाके जब लोगों को अवेयरनेस आई, बट दैट टुक टाइम. बहुत सारे लोग एकदम जंप करते हैं, ओवरनाइट पतला होना चाहते हैं, पीपल डोंट वांट टू एक्सरसाइज और मेंटेन अ गुड, अल्कोहल पीते हैं, है ना, सब कुछ. उस सब के बावजूद वो चाहते थे कि बस हम इंजेक्शंस लगवाएं और पतले हो जाएं. एंड आई थिंक सब ने करण जौहर के अभी पीछे इंटरव्यूज़ भी देखे होंगे. सो ही हैड एक्चुअली गॉन ऑन अ वेरी, दैट इज़ कॉल्ड नो ज़ैट डाइट. व्हाट इज़ दैट? ही यूज्ड टू टेक जस्ट 1 मील अ डे. और वो जो 1 मील अ डे भी था उनका वो ग्लूटेन फ्री था. तो जब कार्ब्स ही नहीं गए, ओनली एसेंशियल प्रोटीन्स एंड फैट्स गए, तो कोई भी पतला हो सकता है. तो उनको लिंक कर दिया गया कि मे बी ही हैज़ गॉन Ozempic एंड दैट वाज ऑल सो मच वायरल ऑन सोशल मीडिया. तो अफेक्ट्स हैं, बट इसके और भी कॉन्स, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं. एंड बट देन देयर इज़ वी पीपल आर स्टैंडिंग टू टेल ऑल आवर क्लाइंट्स दैट नहीं, ये लेना है, इतना लेना है. तो दैट वाज योर आंसर टू लाइक सोशल मीडिया कितना हेल्पफुल है. Okay, so ma'am, I have seen that. Okay, we have discussed about smile designing. So now we will move to cosmetology procedures. So पहले आप मुझे ये बताइए कि what are the different kinds of cosmetology treatments जो available होते हैं and ये किस लिए होते हैं? सो कॉस्मेटोलॉजी एज आई टोल्ड यू कि एस्थेटिक्स है. इसके लिए सबसे पहले जो मैं सबसे ज़्यादा अपने क्लिनिक में करती हूँ, एज आई एम ओरोफेशियल सर्जन ऑल्सो, सो दैट इज़ बोटॉक्स, फिलर्स एंड थ्रेड्स. ये मैं सबसे ज़्यादा करती हूँ. दैट इज़, मैं डिटेल आपको इसके बाद बताऊँगी. सेकेंड कम्स योर मेडिकेटेड फेशियल्स. ये दे आर अनलाइक सैलून फेशियल्स. इसमें कोई मसाजेस और ये सब नहीं होते हैं. वी जस्ट चेक योर स्किन माइक्रोस्कोपिकली. भी हम देखते हैं कि आपकी स्किन में कितना टैन है, अनइवन स्किन टोन है, पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ के मिलाजमा तो नहीं हो गई है, अकॉर्डिंगली एक्ने तो नहीं है, एक्ने स्कार्स तो नहीं है. हर स्किन टाइप देख के, ऑयली नॉन ऑयली के बाद ये चीज़ें आती हैं. सो वी गाइड यू फॉर मेडिकेटेड फेशियल्स एंड दे आर अमेजिंग. आई मीन बहुत सारे लोगों को कुछ भी और नहीं करना पड़ता. वंस इन 21 days 3 weeks में ये फेशियल्स कराते हैं. सो दे आर कंबाइंड विद डिफरेंट केमिकल पील्स ऑल्सो, जिसमें ग्लूटाथियोन पील हो गई, हाइड्रोनिक फेस मास्क हो गए. तो ये सब
चीज़ें करते हैं सेकेंडली। थर्डली आर एंटा एजिंग थेरेपीज़। एंटा एजिंग में मेजरली ये फेशियल्स के साथ क्या आ जाता है, नॉन सर्जिकल फेस लिफ्टिंग आ जाती है। एज के साथ क्या होता है, हमारी स्किन लूज़ हो जाती है, यहाँ से सैग हो जाती है, सो वी मेक दोज डिफाइंड जॉ लाइन, वी ट्रीट ऑल दीज डबल चिन, ये सारी एंटा एजिंग में आ जाती हैं। एंड देन देयर आर IV ड्रिप्स बहुत सारी। तो IV ड्रिप्स बहुत अच्छा काम करती है। हेयर थिनिंग, हेयर फॉल के लिए दूसरी IV ड्रिप्स होती हैं, ग्लो हाइड्रेशन के लिए दूसरी IV ड्रिप्स होती है। सो दीज आर ऑल अंडर एंटा एजिंग। एंड स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ, हमारे क्लिनिक में ट्रीटमेंट्स सबसे ज़्यादा होते हैं एक्ने के बहुत पेशेंट्स आते हैं, हम जो अर्ली जो बच्चे आते हैं। एंड देन इज़ एक्ने स्कार्स। पुराने लोगों के एक्ने ठीक हो गया होता है, बट क्योंकि उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं कराया होता तो स्कार्स रह जाते हैं। देन और बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हमारे पास पिगमेंटेशन और मिलाजमा के लिए आता है, एंड दे जस्ट वांट ओवरनाइट क्विक रिजल्ट्स, राइट? सो वी गिव अ सेट ऑफ थेरेपीज, सो दे all are the aesthetic procedures which are there in our clinic. Okay, amazing. So you told us about so many procedures. So and a lot of people are generally suffering from them. So I don't know whether suffering is right word or not. I mean, they are having those things. For example, acne scar is the biggest problem that maybe generally youngsters face at their earlier ages. So what do you think, like for example, people say that their body is going through some changes, they are coming to their adult life, so that's why they get these acne, and later on they get like fine. Some people, they don't like it remains on their skin, and obviously it's not, nobody likes acne. So आप थोड़ा इसके बारे में बताइए कि जैसे acne scars होते हैं, ये कैसे होते हैं, और अगर आपका हो गया मतलब ठीक ही नहीं हो रहा है, सो इज़ देयर एनी ट्रीटमेंट टू फिक्स दैट? Yes, so सबसे important, Durga, any time a patient walks in my clinic related to these things, acne scars, pigmentation, uneven skin tone, melasma, हम सबसे पहले इनके ब्लड टेस्ट कराते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हार्मोनल हैं। एक्ने तो सबसे पहले एडोलेसेंस में क्यों शुरू होता है, 15-16, क्योंकि तब हार्मोन्स चेंज होते हैं। फीमेल्स हैं, दे यूजुअली गेट देयर मेंसेस एट दैट टाइम, राइट? इसी टाइम में बच्चे सबसे ज़्यादा सीडेंट्री लाइफस्टाइल में होते हैं, वो टाइम पे नहीं सोते हैं। आप देखोगे आजकल 17-18 ईयर्स के बच्चों के नीचे अंडर आई डार्क सर्कल्स हैं, राइट? सो अगेन सीडेंट्री लाइफस्टाइल, दे आर ईटिंग सो मच जंक। मतलब हमारे पास जो पेरेंट्स आते हैं वो आके हमें इसके साथ बोलते हैं कि बच्चों की काउंसलिंग खाने के भी ज़्यादा कर दो, अपार्ट फ्रॉम द ट्रीटमेंट्स व्हाट वी आर गिविंग। तो इसलिए सबसे पहले ब्लड टेस्ट। तो यूजुअली फीमेल्स में जो एक्ने होता है, दैट इज़, अगर वो एडोलेसेंस में है, सो दैट कुड बी प्री मेंस्ट्रुअल, पोस्ट मेंस्ट्रुअल, दैट कुड बी, अगर वो अर्ली 30s में आ गए हैं, वी चेक देयर द एंटायर लिपिड प्रोफाइल, ब्लड प्रोफाइल, हम थायराइड चेक कराते हैं। फीमेल्स का PCOD इज़ द मेन कॉज ऑफ दिस एक्ने। तो एक्ने अनलेफ्ट लीड्स टू एक्ने स्कार्स। तो अगर एक्ने कंट्रोल हो गया तो एक्ने स्कार्स नहीं होंगे, राइट? तो ये हो गया 30s तक। जो हमारे पास लोग आते हैं 40s में, उनके कोई ना कोई हार्मोनल हिस्ट्री होती है, यूजुअली इट इज़ रिलेटेड विद थायराइड और अनट्रीटेड PCOD, जो कि वो भूल चुके हुए हैं, राइट? 40s में, मतलब अर्ली 50s में भी थायराइड। तो पहले हमें इसके साथ वो ट्रीट करना पड़ता है। तो वी सेंड, लाइक अगेन वी सेंड आर पेशेंट्स, वी हैव अ गायनेक ऑन पैनल, तो वो मेडिकेशन स्टार्ट करा के हमारा ट्रीटमेंट काम करता है। एंड येस, इट गोज़ अप्रॉक्स 85-90% चला जाता है, प्रोवाइडेड वो एक अच्छे लाइफस्टाइल में आ गया। दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे डाइट पे पैनल पे होते हैं, जो कि उनको डाइट बताते हैं। तो मुझे आज तक अपने 18 साल के एक्सपीरियंस से ये समझ आया कि अगर ये प्रॉब्लम है, उसको 360 डिग्री से पकड़ लेना चाहिए। तो अगर हम जो अंदर खा रहे हैं वही बाहर दिखेगा। सो योर लाइफस्टाइल, देन इज़ योर डाइट, देन इज़ योर राइट काउंसलिंग अबाउट द ब्लड टेस्ट, उसका मेडिकेशन शुरू होना चाहिए, एंड फाइनली फॉल्स आर कॉस्मेटोलॉजी ट्रीटमेंट्स। तो अगर हम सारे पे फोकस करते हैं तो येस, द रिजल्ट्स आर ऑलमोस्ट 85-90%। एंड देन वंस इट्स डन, सो वी आस्क द पेशेंट्स टू वॉक इन वंस इन 3 मंथ्स। हमारे पास कॉल जाते हैं, क्योंकि क्या पता उस टाइम में कोई डिजीज़ अक्कर हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए किसी को, राइट? आपने सिर्फ एक्ने स्कार्स का बोला, यहाँ पे मैं बात करूँगी लेज़र हेयर रिमूवल की, वो तो बिल्कुल हार्मोनल होता है। तो हम जब एक बार, सो इट इज़ नेवर अ परमानेंट लेज़र हेयर रिमूवल सिस्टम, इट इज़ रिडक्शन, वी कॉल दैट रिडक्शन इन लेज़र है, LHR। तो उसमें एक बार पेशेंट करा जाता है, और फिर अगर वो 5-6 साल बाद आता है तो उसको PCOD हो गया होता है, या कभी थायराइड, वो हम बेटर बताते हैं, क्योंकि कई बार क्लिनिकली लोगों को पता नहीं लगता, क्योंकि किसी के हेयर्स चिन पे आ जाएंगे, यहाँ पे अपर लिप्स पे आ जाएंगे।
तो सो दैट्स द रीज़न दीज ऑल ट्रीटमेंट्स आर ऑलमोस्ट परमानेंट. मतलब बट अगर आपकी इंटरनल बॉडी में डेफिशिएंसी आ गई है या आपको कोई चीज़ और प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी है, देन दीज ऑल थिंग्स आर रिलेटेड. ओके, सो अकॉर्डिंग टू जैसे आपने बताया, सो अकॉर्डिंग टू यू इट्स मोस्ट ऑफ योर डाइट कि आप क्या खाते हैं वैसे आपकी स्किन. ट्रू. एंड देन इज योर स्किन केयर रिजीम. ओके. कि हम इतना धूप है, इतना इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स हैं, दो आर चंडीगढ़ इज़ बेटर देन सो मैनी सिटीज़, बट फिर भी हमें धूप से तो बचना है ना. तो इसलिए जैसे ही ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है उससे पहले मैं स्किन केयर रिजीम देती हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसके साथ साथ फिर ट्रीटमेंट का इफेक्ट इज़ डबल. फिर ट्रीटमेंट का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है. ओके, सो मैम व्हाट इज़ द बेसिक स्किन केयर रूटीन जो आपको लगता है कि लोगों को अपने जनरली डे टू डे लाइफ में फॉलो करनी चाहिए, और इज़ इट डिफरेंट फॉर एज, लाइक इज़ इट एज ग्रुप वाइज? फॉर एग्जांपल 30s के लिए अलग है, 40s के. सो पहले तो बेसिक हमें ये समझना चाहिए कि हमारी स्किन, लोग हमें आके बोलते हैं जॉनसन्स बेबी स्किन चाहिए, वो क्यों नहीं है, या वो इट इज़ ऑल रिलेटेड टू यूवी. एंड यूवी के अंदर भी हमारे धूप के नीचे यूवी ए रेज़ के साथ यूवी बी रेज़ भी होती है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक अब हम अंदर बैठे हैं तो हम वी आर अंडर द इफेक्ट ऑफ यूवी बी रेज़ मोर. तो यूवी जैसे ही बाहर स्टेप इन करेंगे यूवी ए, तो 6 बजे के बाद भी अगर कोई अंदर है तो वो सन के अलावा हमारे ये लाइट्स हैं जो कि LED लाइट्स हैं, ये भी हमारे स्किन पे इम्पैक्ट करती हैं. तो कॉरपोरेट्स में जो लोग आते हैं जो कि 12-12 घंटे काम करते हैं, वो कहते हैं हम तो धूप में नहीं निकलते तो भी हमारे पिगमेंटेशन है, तो भी हमारे अनइवन स्किन टोन है, हमारे एक्ने हो रहा है. इट्स ऑल रिलेटेड टू योर यूवी लाइट. सो अ मस्ट थिंग विच एवरीवन नोज एज वेल इज़ SPF, एंड दैट इज़ थॉरली गाइडेड मेडिकेटेड SPF. बाहर कहीं से भी SPF नहीं ले लेना कि हमारा कोई इसका एडवर्टाइजमेंट बड़ा अच्छा आया तो हम ये SPF ले लेंगे. एंड वॉट एवर योर डॉक्टर सब्सक्राइब्स यू, सीइंग योर स्किन, सीइंग द पोरोसिटी, सीइंग योर टेक्सचर ऑफ द स्किन, आप वो SPF ले लोगे, राइट. दैट इज़ योर अर्ली 20s में. बट आपको एक फेस वॉश बहुत अच्छा चाहिए. SPF तब काम करेगा अगर स्किन क्लीन होगी. तो अ बेसिक क्लींजर और फेस वॉश, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मॉर्निंग एंड नाइट फॉलोड बाय SPF. ये अर्ली 20s का रूटीन है. इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए होता है. आजकल लड़कियां 20-21 साल में भी सीरम्स एंड ऑल दे डोंट रिक्वायर, क्योंकि उनका स्किन का भी टेक्सचर प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ द स्किन बाइंडिंग प्रोटीन्स विच आर कोलेजन एंड इलास्टिन, वो बहुत अच्छे हैं. तो हमें और कुछ करना ही नहीं है उसके ऊपर. तो वो जो हमारी नानी दादी वाले नुस्खे होते थे ना, बेसिक जितना रहना है. आज भी इफ़ यू विल आस्क मी माई रिजीम, सो बिफोर स्लीपिंग आई वॉश माई स्किन विद दैट कच्चा दूध. तो मुझे लगता है उससे बेस्ट क्लींजर कोई नहीं है. दैट्स द रीज़न वी हैड इंट्रोड्यूस्ड आवर ओन क्लींजर्स जिसमें ये सब डाला था, हर्बल चीज़ें डाली थी ताकि वो काम करें इतने अच्छे से. एंड SPF, सो दैट गोज़ फॉर 20s. फॉर 30s एंड अर्ली 30s उस टाइम तक क्या होता है, यूजुअली सनस्क्रीन, जैसे मैं आज बता रही हूँ, अब कुछ सालों से अवेयरनेस हो गई, पहले नहीं थी. पहले घर पे पूछते थे तो हम लोग सिर्फ एक कोल्ड क्रीम लगा लेते हैं या चामिस की क्रीम लगा ली, रिमेंबर पुराना. तो इसलिए हमारी स्किन ऑलरेडी डैमेज, अनइवन स्किन टोन हुई होती है. तो अर्ली 30s में, जबकि इन सब चीज़ों की हमेशा समझना, एक चीज़ को जब अनट्रीट करेंगे दैट विल लीड टू अनदर थिंग. जैसे बोलते हैं ना, कीड़ा लगा दांत में, तो एक दांत पे कीड़ा लगा तो क्योंकि दर्द नहीं हुआ, हम नहीं आए, तो 4-5 साल में 6 कैविटीज़ होगी. इट्स द सेम विद स्किन. अगर हम स्किन का ध्यान ही नहीं रख रहे हैं, स्टार्टिंग में हमने SPF नहीं लगाया क्योंकि हमारी स्किन अच्छी है, जब तक वो प्रॉब्लम हुई तो वो ट्रिपल पोर्ड पे प्रॉब्लम चली जाती है, राइट. दैट इज़ द रीज़न अनट्रीटेड वो वाला स्किन लीड्स टू अनइवन स्किन टोन. उसको भी हम छोड़ते हैं. कई बार हमें घर पे ही गाइडेंस नहीं मिलते, हम बोलते हैं बेसन लगा लो या टमाटर से ठीक कर लो. दीज आर एड ऑन थिंग्स, बट ये किसी प्रॉब्लम को दूर नहीं करते हैं. कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको टमाटर या ये सब लगा के आपकी पिगमेंटेशन ठीक हो जाए, बिकॉज इट हैज़ रीच्ड टू सर्टेन लेवल, राइट. सो अर्ली 30s के लिए मैं एक विटामिन C सीरम रिकमेंड करती हूँ, अगेन गाइडेड बाय अ डॉक्टर, मेडिकेटेड. उसमें क्या होगा, आपको सिर्फ रात को सोने से पहले वो विटामिन C लगा के सोना है. आफ्टर दैट, एंड इफ़ योर स्किन इज़ ड्राई, आप मॉइस्चराइज़र रात को यूज़ कर सकते हो. बट अगर एक नॉर्मल बैलेंस स्किन है तो बैलेंस्ड मॉइस्चराइज़र, उसका pH बैलेंस्ड होना चाहिए. इसीलिए हम मेडिकेटेड प्रोडक्ट की किट बना के देते हैं. ये आपकी स्किन के लिए क्लींजर है. एंड देन इज़ योर SPF विच यू हैव टू, वेरी इंपॉर्टेंट, रीअप्लाई एवरी 4 hours. अगर 3-4 घंटे के बाद नहीं निकाला तो उसका ख़त्म हो गया, इवन इफ़ यू आर सिटिंग इनसाइड. एंड देन आप रात को जाके मुंह धोइए और उसके बाद सीरम, विटामिन C सीरम. नाउ दिस गोज़ फॉर 30s.
अब आपने मुझे पूछा 40s और 50s में हमारी स्किन पे फाइन लाइंस, रिंकल्स शुरू हो गए होते हैं, क्योंकि इतना परफेक्ट तो कभी लाइफ में मैंने भी नहीं शायद सनस्क्रीन लगाया होगा, राइट? तो जब फाइन लाइंस, रिंकल्स शुरू हो गए अनट्रीटेड में जब होते हैं तो हम इंजेक्टेबल्स करते हैं. सो इन दैट वी गाइड देम विद रेटिनो ए प्रोडक्ट्स. दैट्स अगेन मेडिकेटेड. मैं मेडिकेटेड बार बार यूज़ करूँगी क्योंकि मेरे पास लोगों के वेस्ट प्रोडक्ट्स आते हैं, उन्होंने एयरपोर्ट से ले लिया और उन्होंने वो फ़ॉरेन गए थे, उनको ये वाला फ्रैग्रेंस बहुत अट्रैक्ट करी, ले लिया. इट्स ऑल यूजलेस वेस्टेज. तो मेडिकेटेड एक प्रोडक्ट आप यूज़ करके जो आपकी स्किन टाइप के लिए डॉक्टर आपको बताएगा, दैट गोज इज रेटिनो, अनदर प्रोडक्ट विच यू हैव टू अप्लाई बिफोर सनस्क्रीन. जितनी भी मैं ये बात कर रही हूँ, मैं पर्सनली हर एक का, आप मेरे पेशेंट्स देख सकते हैं, पर्सनली सबका स्किन केयर रिजीम डिफरेंट होता है. एंड देन फाइनली ये बेसिक रूटीन है, क्लिनजर, फेस वॉश, SPF एवरी 4 आवर्स, और रात को फिर क्लींजर यूज़ करा, और हमने विटामिन C सीरम और रेटिनो ए जब बताया गया, क्योंकि रेटिनो ए रोज़ नहीं लगाना होता, दैट डिपेंड्स ऑन द स्किन, ट्वाइस और थ्राइस अ वीक, एंड देन यू आर डन. थैंक यू मैम. आपने यू बाइफ्रिकेटेड इट इन अ वेरी वेल मैनर. सो जैसे आपने बताया कि अर्ली 20s में या फिर मे बी जब हम यंग एज में वी डोंट हैव टू डू एनी थिंग लाइक कोई प्रोसीजर या ये जो हमारी नेचुरल स्किन है दैट्स गोना वर्क फाइन. बस हाँ, जो आपके बेसिक स्किन केयर चीज़ें हैं, जैसे आप अच्छे से अपना फेस वॉश कर सकते हैं, सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हैं, एंड मॉइस्चराइज़र, दैट्स ऑल. That's early 20s में no need of any other procedure, right? Just take care of our skin, and you have to eat well, very eat important. well, and good lifestyle choices like sleeping on time. ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं हमारी स्किन को, ठीक है. बट as you said, and which is like very right point, कि people buy a lot of things, और एयरपोर्ट से ले लिया, कहीं से भी ले लिया, it's all advertisement. But you are saying that everyone's skin type is different, तो वो एक generalized चीज़ नहीं हो सकती सबके कभी लिए. भी नहीं हो तो सकती. हर इंसान को एक अलग तरह की कोई चीज़ होती है. इट्स जस्ट पीपल आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स बिकॉज बाय एडवर्टाइजमेंट, एंड लोग उनको खरीद भी रहे हैं unknowingly. उनको पता भी नहीं है, मे बी दे शुड नॉट, मे बी इट्स गोना वर्क ऑन योर स्किन नॉट ऑन माई स्किन, राइट? समटाइम्स पीपल ऑल्सो गेट एलर्जिक टू सम प्रोडक्ट्स. उनकी स्किन बहुत ख़राब हो जाती है. आई रीड अ लॉट ऑफ न्यूज़ अबाउट दीज थिंग्स कि कुछ लोगों की शादी से पहले स्किन पे इतनी एलर्जी हो गई, शादी वाले डे पे एलर्जी हो गई. तो ये सारा ऐसे प्रोडक्ट्स की वजह से, दे आर नॉट दे, एंड देन दे से कि ये कोई सस्ता प्रोडक्ट नहीं था, बहुत महंगा था, एयरपोर्ट से खरीदा था, दूसरी कंट्री से खरीदा था. बट इट डजंट मैटर, राइट? बिल्कुल भी नहीं. यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर. ऑलवेज हो सकता है उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स उस प्रोडक्ट में ऐसा हो जो आपकी स्किन के लिए बने हो. व्हाट इफ़ जो बिल्कुल नहीं बने, व्हाट इफ़ वो काम ही नहीं कर रहे. कोई मेरे पास 5,000 का सनस्क्रीन लेके आता है और वो बोलता है मैम मैं तो ये 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ, एंड आई टेल देम कि अगर आप कर रहे हो तो आपकी ये स्किन टोन बेटर क्यों नहीं हुई, आपकी पिगमेंटेशन बढ़ती क्यों जा रही है. देयर इन दैट हिट्स देम कि, और फिर द मोमेंट वी गिव देम द राइट थिंग विच इज़ यूजुअली हमने अपने क्लिनिक में, क्योंकि हर तरह का पेशेंट आता है, सो वी हैव प्रोडक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 500 एज वेल. पर वो मैंने इसलिए नहीं रखे कि वो 500 का प्रोडक्ट है, क्योंकि वो काम करता है, राइट? डिपेंड्स. कोई बेटर क्लाइंट आता है, वो बोलता है कि हमें इससे बेटर चीज़ चाहिए. अगेन मेरे लिए ये बेटर इज़ नेवर ऑन द बेसिस ऑफ एनी फाइनेंशियल और मनी, इट्स ऑन द स्किन टाइप. तो अकॉर्डिंगली जब हम स्किन केयर करते हैं, इतने सारे पेशेंट्स एक हफ्ते में आके कहते हैं डू वी रियली रिक्वायर ट्रीटमेंट बिकॉज द स्किन केयर इज़ सो गुड. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, और हमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम डॉक्टर से बिना पूछे कुछ भी स्टार्ट नहीं करें. ओके. सो मैम, फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपने चीज़ें बताई कि हमें कंसल्ट करके ही अपने फेस पे कुछ लगाना चाहिए आफ्टर मे बी यू आर 25 ईयर्स ओल्ड, बिकॉज इससे पहले तो जो बेसिक्स अपनी रूटीन रहती है स्किन केयर की, वो दैट वर्क्स फाइन. सो we live in India, right? So even somebody visits cosmetologist or dermatologist, so there are a certain charges, and ये product लेने के भी, तो majority of people they don't, in cities maybe people care about these things, but in rural areas or villages, people where you don't even see a cosmetologist, there is no cosmetology clinic in these particular areas. So what do you think कि वहाँ पे लोगों को, I mean, how can they do it? Even if they want, how can they consult somebody who can give them right advice? Okay. Very good question again.
देखिए, इसीलिए रूरल के एक लेवल तक तो एक्सेस होता था, क्योंकि रूरल में भी देर आर सर्टेन डिस्पेंसरीज जो कि बनी हुई हैं, बट देन दे जस्ट लाइक केटर योर बेसिक नीड्स, है ना, कि बेसिक, कि अगर किसी को दवाई चाहिए स्किन के, आई गेस अब विद एडवांसिंग टाइम देर आर डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट जो कि प्लेस करे गए हैं, बट बहुत इंटरनल एरियाज़ में भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास इंटीरियर एरियाज़ हिमाचल के, पंजाब से लोग आते हैं. सो देयर इन व्हाट वी डू दुर्गा, वी कंडक्ट कैंप्स. हमारे डिफरेंट मेरे भी कैंप्स होते हैं, मंथली एक कैंप कहीं ना कहीं किसी जगह पे होता है. तो मैं ट्राई करती होती हूँ कि मेरी जो टीम है वो ऐसी जगह पे अरेंज करे जिनको पता ही नहीं है, जिनको ये भी नहीं पता कि कलर भी बेटर हो सकता है, जिनको ये तक भी नहीं पता. आई गॉट टू नो दैट दे आर नॉट इवन यूजिंग फेस वॉशेस, they are just washing their face with water. So that is the only way we can do, like conducting more of camps, and I'll encourage more doctors to go ahead on this, because हमें ये भूलना कभी नहीं चाहिए, like we all are into a business but this is an ethical business. तो हमें उसके साथ साथ अगर हम जितना community care करेंगे, हम लोग जब अपने कॉलेज में भी थे तो हमारे इतने कैंप्स लगते होते थे, and we used to enjoy, because imparting knowledge is what makes you on the top rather than your work. तो अपने काम के साथ साथ ये वाली चीज़ मंथली, आजकल तो हमारी एसोसिएशंस हैं, IDA हैं, स्किन की भी होंगी और भी MBBS डॉक्टर्स की भी होंगी, जो कि मुझे ऐसे लगता है कि रेगुलर कॉन्फ्रेंसेस तो जो हैं वो तो एक डॉक्टर्स का एक दूसरे के लिए प्लेटफॉर्म है टू राइज, बट व्हाट अबाउट द कम्युनिटी जो कि एक बहुत दूर तक रह रही है, जिनको ABC भी नहीं पता. एंड दे, बिकॉज आई हैव वर्किंग विद सो मैनी हॉस्पिटल्स एंड आई यूज़ टू गो फॉर दीज कैंप्स एंड दे ट्रीट यू सो वेल, बिकॉज दे आर सो हैप्पी कि उनको कोई बताने आया है और वो उनसे पैसे चार्ज नहीं कर रहा है. द बेस्ट थिंग. सो नॉट ऑलवेज थिंकिंग अबाउट मनी, हर एक को मंथली कुछ ना कुछ कम्युनिटी के लिए करना चाहिए. एंड मैं क्योंकि हॉस्पिटल्स में 12 साल रही हूँ, तो हमारे हर 3 महीने में कैंप्स होते थे एंड आई यूज़ टू इन्जॉय. और उसका एक जो गुड फील वाला फैक्टर होता है ना, वो इतना अच्छा होता है जब हम किसी की हेल्प करते हैं, जब हमें वो दुआएं देते हैं, और वो दुआएं तुम्हें यहाँ तक पहुँचाते हैं. राइट. सो मैम, इज़ इट पॉसिबल, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम लिविंग इन एनी इंटीरियर एरिया, मुझे आई वॉन्ट टू डू दिस बट मे बी आई कैन नॉट ट्रैवल और एनी रीज़न, सो is it done online as well, like, or do they have to go certain tests? नहीं, देखिए, मेरी ऑनलाइन कंसल्टेशंस बहुत होती हैं, जितना ऑफलाइन है उतना ऑनलाइन होता है. तो ऑनलाइन में हम लोग ऑनलाइन पूरा कंसल्ट करके स्किन देख के हम उनको सारा मेडिसिन और जो चाहिए होता है, जो तो वहीं से मिलता है वो ले लेते हैं. जो हमें यहाँ से देना होता है सर्टन प्रोडक्ट्स और ऑन ब्लड ग्रुप एज वेल, कि कुछ एलर्जी ना हो, हम उनको देते हैं. बट फॉर ट्रीटमेंट दे हैव टू वॉक इन, क्योंकि जब हम कैंप्स भी लगाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ ब्लड टेस्ट हो सकते हैं, डिजीज़ डायग्नोज हो जाती है, कुछ ना कुछ फ्री सैम्पल्स या चीज़ें दे देते हैं. बट फॉर ट्रीटमेंट देयर इज़ नथिंग समथिंग लाइक मोबाइल वैन विच वर्क, सो दे हैव टू वॉक इन. और आते हैं लोग सारा कुछ कंसल्ट करके, पैसा, चार्जेस, वॉट एवर सूट्स देयर बजट, एंड दे वॉक इन and they go back the same day sometimes. रात में, बी इट एस्थेटिक, डेंटल, वो सेम डे इम्प्लांट एंड टूथ लॉन्च ही इसलिए हुआ था कि हम सेम दिन कर दें. तो लोग चाहे शिमला से आ रहे हैं, पानीपत, दिल्ली, दूर दूर से आ रहे हैं, तो वो उसी दिन करा के वापस चले जाए. Okay, so I think we have covered a lot of from this, but you told about SPF as well. SPF के भी, क्योंकि सोशल मीडिया पे जैसे आपने बताया, everybody wants to like give their knowledge, but most of the time it's not the right knowledge, and maybe people who are doing this, they are doing very unfair to their audience, क्योंकि sometimes people say okay this sunscreen SPF 30 लगाना चाहिए, 50 लगाना चाहिए, ये लगाना चाहिए, वो लगाना चाहिए, ये ब्रांड का लगा लो. एंड जो लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं, दे आई थिंक दे थिंक दैट ओके मे बी दे आर राइट. वो कहते हैं ना हमारी स्किन पे ये हो गया, ये इफेक्ट, ऑब्वियसली इट्स ऑल स्क्रिप्टेड, it's all for marketing, but they don't know that. They don't know, but yes. Because you are the right person to tell about this particular thing, what is this myth about using SPF 30, 40 yes, or what is this? देखिए, पहले तो ये जो एशियन स्किन है ना हमारी, हम कभी भी फॉरेन वाले प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करें एक्सेप्ट परफ्यूम्स, क्योंकि जो फॉरेन वाले प्रोडक्ट्स एब्रॉड वाले बने हैं वो उनकी स्किन टाइप के लिए बने हैं. सो माई सिस्टर स्टेज एब्रॉड, शील कम बैक वंस इन 6 months और अ ईयर, वो यहाँ से अपनी स्किन, क्योंकि वो यहीं की बॉर्न ब्रॉटअप है,
तो मैं उसको प्रोडक्ट्स यहाँ के देती हूँ कंबाइंड विथ थोड़ा बहुत, क्योंकि उसको रहना वहाँ पे है, बट उसकी स्किन टाइप कहाँ की, ओरिजिन यहाँ का हुआ. इट्स द सेम वे हमें SPF मैंने देखा कुछ कंपनीज मार्केट कर रही हैं, हम 70 SPF दे रहे हैं. इट्स ऑल नॉनसेंस. इट्स जस्ट 30 to 50 SPF which suits our this condition. What the important thing again I'll emphasize matter is reapplying sunscreen after 3 hours. तो आप 30 का डालो, 50 का डालो या 70 का डालो, उसको 3 घंटे बाद नहीं कराया तो वो ख़त्म है. सो दैट इज़ 30 to 50 इज़ द SPF जो कि हमारा UV विथस्टैंड करता है अंडर अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ UVA एंड UVB रेज, राइट. सो इसलिए, और जैसे कि मैंने बोला, मेडिकेटेड सनस्क्रीन मीन्स गाइडेड बाय द डॉक्टर. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह रही हूँ कि जो एयरपोर्ट पे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं और वो सब ख़राब है, नहीं. बट हाउ कम यू नो कि आपकी स्किन टाइप को वो चाहिए. हो सकता है आपकी अनइवन स्किन टोन है, राइट, और वो आपको नॉर्मल SPF काम नहीं कर रहा, आपको वो FPF में रेटिनो A डाला हुआ चाहिए. हो सकता है कि किसी को ग्लो हाइड्रेशन की ज़्यादा ज़रूरत है बट उसकी स्किन टाइप ऑयली है. आपको कैसे पता कि उस सनस्क्रीन में क्या डला होना चाहिए, राइट. तो उस तरह से आपको सनस्क्रीन वैसा दिया जाएगा. बहुत सारे लोग हमें आके कहते थे कि हमारी सनस्क्रीन ना वाइट कास्ट बनाती है. सो वाइट कास्ट इज़ अ गुड थिंग. वाइट कास्ट इज़ नॉट समथिंग बैड. उसको लगाने का तरीका है कि हमें ओवर नहीं लगाना और हमें मॉइस्चराइज़र में मिक्स करके लगाना है. सो वाइट कास्ट मीन्स कि हमारा एड ऑन प्रोटेक्शन हो रहा है कि लेयर बनी, जितनी इसके ऊपर लेयर बन जाएगी लाइट लेयर, उतना हम धूप से बचेंगे. सो वाइट कास्ट वॉज अ गुड थिंग. तो लोगों को शुरू में पता नहीं था एंड एवरीवन वाज अगेंस्ट, हर कोई, कि हमारा SPF वाइट कास्ट नहीं बनाता, हमारा नहीं बनाता. वाइट कास्ट तो होना चाहिए, तभी वो लेयर बनाएगा. उसका तरीका है यूज़ करने का. दैट्स द रीज़न दैट एनी और एवरीवन शुड वॉक इन टू अ डॉक्टर. स्किन कंसल्टेशन सबका होना चाहिए. डर्मेटोलॉजिस्ट देते हैं डिजीज्ड स्किन कंसल्टेशन. यू कैन ऑल्सो वॉक इन टू देम फॉर नॉर्मल स्किन कंसल्टेशन, और वो भी बताते हैं SPF. एंड वी कॉस्मेटोलॉजिस्ट ऑल्सो टेल द सेम कि हमारा डिजीज्ड नहीं, बट ये चीज़ें आपकी स्किन में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, इसको इस तरह से एनहांस कर सकते हैं. ओके, सो लेसन इज वी शुड नॉट गेट ट्रैप्ड इनटू एडवर्टीजमेंट. नेवर. एंड हमें अपनी स्किन को प्रॉपर्ली कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास दिखाना चाहिए एंड देन वी शुड go for any kind of skincare product. for if there are some people, I think इवन वी विल टॉक मेजरली अबाउट आवर कंट्री, तो वो नहीं विजिट करते कॉस्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट को, और वो SPF बाय कर लेते हैं कोई भी. इट्स नॉट कि वो नहीं करना चाहते. जैसे मैंने आपको बताया, एक्सेस इशू है या वहाँ पे नहीं डर्मेटोलॉजिस्ट है या कॉस्मेटोलॉजिस्ट है. तो इज़ देयर एनी जनरल SPF? ऑब्वियसली वी आर नॉट एंडोर्सिंग एनी ब्रांड, बट जस्ट फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल कि वो अगर वो लगा लें तो दैट विल डू द बेसिक वर्क, लाइक वो उनकी स्किन को प्रोटेक्ट करेंगे UV रे से. ओके, तो मैं ऐसे देर इज़ अ SPF बाय द नेम ऑफ UV Edge which has a very balanced pH concentration of the right ingredients. मतलब उसमें वो हैवी 50 है जो कि सबको सूट करता है, स्किन को ऑयली नहीं करता है, राइट. जो ऑयली ड्राई स्किन वाले हैं वो एड ऑन मॉइस्चराइज़र यूज़ कर ले. सो दैट इज़ वन SPF विच आई रिकमेंड टू यूज़, क्योंकि मैं किसी भी ब्रांड को इंडोर्स नहीं करती हूँ. एंड दैट्स वन SPF. एंड देन अनदर वन SPF कम्स इज़ ऑफ लैरोनिक्स. हमारे पास मेडिकेटेड आता है. उसके प्रोडक्ट्स मैंने देखा विच आर इन अ वेरी राइट रेंज. बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं चाहिए होता है. कई बार ऐसा होता है कि ट्रीटमेंट से ज़्यादा ये प्रोडक्ट्स की कॉस्ट हो जाती है, 2-3 लिए. तो वन इज़ लैरोनिक्स जो कि हमारे पास अवेलेबल होता है. दैट हैज़ अ वेरी गुड विटामिन C सीरम एंड SPF लाइक वी यूजुअली यूज़. तो ये 2 चीज़ें हैं जो कि अवेलेबल रहती हैं. थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग. अनदर वेरी dangerous, I would say, thing is that a lot of salons have started doing this treatment and people are going there, I don't know for what reasons, and they are also doing this because I don't think there is any check by the government or anyone that only doctors can do that. They are also doing this. Obviously they are not professional in this, they have not studied this, they have not done their practice, but still people are going there. There could be so many reasons, but अभी तो थोड़ा awareness फैलने लगी है क्योंकि we have read a lot of news of people dying because they went for hair transplant in a salon and then it went wrong, but still people are going to salons for these treatments. So what do you recommend? Like,
can they do also, is it so easy or so you can say like casual that salons can also do that, or is it not recommended? सी सैलून्स का क्या रहता है ना कि पहले तो कॉस्मेटोलॉजिस्ट वर्ड यूज़ ही डॉक्टर्स के लिए होता था, राइट? Right. सो आई रादर देन कॉस्मेटोलॉजिस्ट आई कॉल माई सेल्फ मेडी कॉस्मेटोलॉजिस्ट, क्योंकि मेडी मीन्स रिलेटेड टू ऑल स्किन एस्थेटिक्स, राइट? एंड सैलून्स में कैसा हो गया है कि अब तो लोगों को बहुत अवेयरनेस हो गई, तो वो लोग नॉर्मल फेशियल्स, वैक्सिंग और ये करते थे, तो बहुत सारे मशीनरी उन लोगों ने जाके चाइना से ख़रीदनी शुरू कर दी, तो वहाँ पे कोई भी लेज़र हेयर रिमूवल की मशीन ले आया एंड दे स्टार्टेड डूइंग। और जब कि अब इतना ख़राब सिनेरियो हो गया है, नाउ आई हैव हर्ड दैट दे कॉल डॉक्टर्स टू डू दिस। तो फ्रीलांसर में डॉक्टर्स, अनटिल एंड अनलेस आई सजेस्ट एवरीवन, जब तक अंडर पैनल कोई डॉक्टर नहीं है, आप कोई भी प्रोसीजर नहीं कराए एक्सेप्ट फॉर अ रिलैक्सिंग मसाज फेशियल, जो कि नॉर्मल सैलून्स में होता है। तो मैं सबको रिकमेंड करूँगी, और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अवेयर हैं, वो जाते भी नहीं है फॉर द कॉस्ट पार्ट। कई बार लड़कियाँ इनिशियली राइट चली जाती हैं ऐसी चीज़ें कराने, बट आई वोंट रिकमेंड, क्योंकि मेरे पास सैलून से इतने कॉल्स आते हैं दैट किसी हमने ये पील अप्लाई करी मैम, ये इतना ज़्यादा बर्स्ट हो गया, पूरे फेस पे इतना काला हो गया, नाउ व्हाट टू डू। सो आई सी ऑल दिस ऑनलाइन, और जिस जगह पे मैं बैठी हूँ इसके अराउंड ही इतने सैलून्स हैं। सो येस, आई गाइड देम एंड आई टेल देम, सो दैट्स द रीज़न देन दे विल कॉल डॉक्टर्स। और तो जब तक अगेन इट्स इम्पॉर्टेंट इज़, आपको याद है पुराना कैसा होता था, एक फैमिली डॉक्टर होता था, Right. है ना, और वो हमें सारी चीज़ के बारे में गाइड करता था, और वो उसको हम भगवान क्यों मानते थे, क्योंकि जो वो ट्रीट नहीं कर सकता था वो आगे बताते थे कि नाउ यू गो टू दिस और दैट। तो आजकल क्योंकि इतना कमर्शलाइज्ड हो गया है, मतलब पीपल फेयर ऑफ गोइंग टू हॉस्पिटल्स, दैट्स द रीज़न पीपल वॉक इन टू प्राइवेट पीपल, है ना। तो अपना राइट इंजेक्टर, राइट डॉक्टर चेक करें एंड डोंट लैंड इन टू फॉर ऑल दीज थिंग्स। सैलून्स आर फॉर अदर थिंग्स, बट ये सब चीज़ें अंडर अनलेस उनके अंडर भी कोई डॉक्टर काम नहीं कर रहा है, दैट टू अ थॉरो एक्सपीरियंस्ड एंड प्रोफेशनल, डोंट लैंड अप। आपने अभी सही बोला हेयर ट्रांसप्लांट की, अभी पीछे जीरकपुर में समवन डाइड, राइट? इससे पहले भी हम बहुत न्यूज़ सुनते रहते हैं ओवरऑल इन इंडिया। तो हमारे क्लिनिक में हेयर ट्रांसप्लांट्स होते हैं दैट आर गाइडेड बाय अ प्लास्टिक सर्जन एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन। प्रॉपर हमारा पैनल होता है, उसके बिना नहीं करते। दो आई एम ट्रेन्ड इन दैट, आई एम लाइक ट्रेन्ड फ्रॉम अमेरिकन अकेडमी ऑफ एस्थेटिक मेडिसिन इन सर्जरी US, जहाँ पे ये सब चीज़ें हमें वहाँ सिखाई जाती है। अगेन आई हैव अ पैनल ऑफ डॉक्टर्स, क्योंकि मुझे पता है कि वो बिल्कुल हेड है टू गाइड देम फॉर ऑल दिस। सो वी शुडंट फॉल इनटू अंडर दिस ट्रैप फॉर लाइक बिल्कुल ही जो इलीगल हो रहा है सारी चीज़ें, और आजकल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा फैल गई हुई है। सो ऑलवेज बेटर गो टू द राइट डर्मेटोलॉजिस्ट, राइट कॉस्मेटोलॉजिस्ट हु हैज़ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। एंड हम लोग एक ट्रेनिंग अकेडमी रन करते हैं वेयर इन आई हैव सेपरेट क्लासेस फॉर सैलून प्रोफेशनल्स, सेपरेट क्लासेस फॉर मेकअप आर्टिस्ट। तो उनके कोर्सेज ही अलग होते हैं, दे आर रिलेटेड टू हेयर, दे आर नेवर इंजेक्टेबल्स। इंजेक्शन तो अलाउड ही नहीं है डॉक्टर को बिना टच करने। तो उनको आई विल इवन गाइड ऑल द सैलून प्रोफेशनल्स टू एनहांस देयर नॉलेज इन देयर फील्ड ओनली, rather than jumping into all these things which are not meant for them. तो अगर वो फेशियल्स करना चाहते हैं, हाइड्रा फेशियल इज़ ओके, देर आर सो मेनी डिफरेंट मशीन्स दे कैन डू, बट केमिकल पील्स और मीज़ोथेरेपी और मीज़ो कॉकटेल्स एंड यूजिंग इंजेक्शंस इज़ ऑल अनप्रोफेशनल, दे शुडंट लैंड अप इनटू दिस। उनको अपने ही स्किल में जाके अपनी नॉलेज एनहांस करनी चाहिए। Right. Thank you so much, ma'am. It was very important Yeah. to discuss. Okay, ma'am. So now we'll move forward. We have also heard a lot of things about Botox and fillers. So tell me about that. What is that? Who can do that? सो बोटॉक्स एंड फिलर्स तो मैं सबसे ज़्यादा करती हूँ और सबसे ज़्यादा पढ़ाती हूँ, राइट, टू ऑल माई डॉक्टर्स। बोटॉक्स क्या होता है, जब इन अर्ली 30s अनट्रीटेड, जैसे कि हमने अभी तक बात करी कि हमने अनइवन स्किन टोन, पिगमेंटेशन, ये सब कुछ हमने ट्रीट नहीं करा। सो फॉर विद एजिंग, एज द एजिंग एडवांसेस ड्यू टू लॉस ऑफ कोलेजन एंड इलास्टिन, जो कि हमारे स्किन बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं, जैसे आपकी स्किन पे बहुत अच्छा कोलेजन इलास्टिन है, सो इट शुड बी टाइट। तो जैसे ही वो लूज़ होता है एज द एजिंग एडवांसेस, दैट लीड्स टू फाइन लाइंस, रिंकल्स। आप देखते होंगे कि हम जब एक्सप्रेशन स्टेट में होते हैं, हंसते हैं, तो हमारी लाइंस ये डीप हो जाती हैं, ये डीप होती हैं। एक्सप्रेशन बनाते हैं ऐसे तो यहाँ पे आ जाती हैं। सो दीज आर फाइन लाइंस जो शुरू होती हैं।
फाइन लाइंस अनट्रीटेड लीड्स टू रिंकल्स. तो रिंकल्स को ट्रीट करने के लिए बोटॉक्स विच इज़ एक्चुअली कॉल्ड बॉटुलिनम टॉक्सिन जो कि ट्रीट करता है, एंड दैट इज़ एन एक्सीलेंट सोल्यूशन ऑन द स्पॉट, 100% रिजल्ट्स. अनलाइक फिलर्स क्या होते हैं, वो भी विद लॉस ऑफ कोलेजन एंड इलास्टिन और हमारे अनइवन स्किन टोन अनट्रीटेड, ये सब जब हम छोड़ देते हैं कि हमने ध्यान नहीं रखा, तो फिलर वर्ड इज़ यूज टू फिल अंडर आई, ये वाले जो अंडर आई ट्रफ हो जाते हैं, टू फिल दीज नेजोलेबियल लाइन्स, टू रिकंटूअर द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फीचर्स. मतलब हमने रिकंटूअर करना है फिलर्स, इसको लिफ्ट करना है फिलर्स. टू फिलर इज़ टू फिल, to rejuvenate and to recontour the already existing contours. हमें चीक लिफ्ट करनी है फिलर से, हमें नेजोलेबल फोल्ड्स लिफ्ट करने हैं फिलर्स, हमें परफेक्ट वी शेप जॉ लाइन्स बनानी है फिलर्स. अंडर आई ट्रफ जो भर जाते हैं, लोगों के गहरे हो जाते हैं, तो हमें फिल किससे करेंगे हम, फिलर्स. एंड देन अनदर टाइप ऑफ फिलर्स जो अब की बहुत ज़्यादा मार्केट में आपने सुना होगा, स्किन बूस्टर्स. तो जिनकी इलास्टिसिटी लूज़ होती है, लॉस ऑफ ग्लो है, हाइड्रेशन है, स्किन इज़ लूजिंग दैट रेडिएंट कॉम्प्लेक्शन, फ्लॉलेस स्किन नहीं है, उसको जब हमने वापस लेके आना है, दैट इज़ डन बाय स्किन बूस्टर्स विच आर अमेजिंग. Okay, so is it done by using injectables? Yes, so that is called injectables, but ये बहुत ही पेनलेस होते हैं. फिलर्स के अंदर हाइलुरोनिक एसिड होता है, वी अप्लाई जेल, आपको पता भी नहीं लगता. आप मेरे सारे वीडियोस में देखोगे, लाइक व्हेन आई एम ट्रेनिंग, तो किसी भी पेशेंट की कोई भी एक्सप्रेशन स्टेट नहीं आती है कि उसको आउच दर्द नहीं हो रहा. सो दैट इज़ हाइलुरोनिक एसिड, हमने इंजेक्ट करना है. तो अभी तक हमने इससे पहले बात करी जो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स थे, वो हम टॉपिकल एपिडर्मिस पे लगा रहे थे, तो वो टॉपिकल स्किन केयर है. जब हमने अंदर से रिजुवनेट करना है और रिकंटूअर करना है और बहुत ज़्यादा ग्लो दिखाना है अंदर से, जो सेमी परमानेंटली हमने करना है, दैट इज़ डन बाय फिलर्स. पेनलेस, मिनिमल इन्वेजिव, दैट लास्ट अप टू 1 ईयर. जो अच्छे फिलर्स होते हैं अच्छी क्वालिटी के, दे लास्ट अप टू 1 ईयर. एंड बोटॉक्स लास्ट अप टू 4 to 5 months. बोटॉक्स एक सेमी परमानेंट है क्योंकि एक्सप्रेशन वापस आ जाता है, हमने फाइन लाइंस रिंकल्स करे तो वापस आ जाता है. बट एन आइडियल पेशेंट को हम क्या रिकमेंड करते हैं, 4 sittings इन अ ईयर, एवरी 4 months. तो हमने 3 sittings एक साल में ली, तो अगले साल वो ऑटोमेटिकली 2 हो जाती हैं, राइट क्योंकि मसल्स आर बीइंग ट्रेन टू रिलैक्स. बोटॉक्स क्या कर रहा है, मसल्स को रिलैक्स कर रहा है, इवेंचुअली ईजिंग आउट दोज फाइन लाइंस एंड रिंकल्स. तो वो हमें 4 महीने के बाद कराना चाहिए, एंड 3 to 4 sittings के बाद वो आधा हो जाता है और धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है. Okay, so in simple words, Botox is something, for example, if I'm having fine lines, Yes. or maybe if I'm having wrinkles, हाँ. तो उसको वो treat करेंगे. बिल्कुल, बिल्कुल. And fillers, for example, if I feel my skin कहीं से loose हो गई है, yes. मुझे इसको जैसे, this is what now you have said it. Yes. For example, in here, for example, in my face, if I like do this, then I feel that it's more plain. Otherwise, there is something here. Something niche is there, yes. Okay, so this is called, and how does it happen? Is it a like aging factor? अगेन एजिंग ड्यू टू लॉस ऑफ अगेन कोलेजन एंड इलास्टिन, जो स्किन बाइंडिंग प्रोटीन्स है, जो कि हमारी सीडेंट्री लाइफस्टाइल डाइट की वजह से ख़त्म हो जाता है. नॉर्मल हमारी बॉडी में वी हैव कोलेजन, हमारी बॉडी में ही कोलेजन है. तभी आपने एडवर्टाइजमेंट्स में देखा होगा कोलेजन पाउडर्स बहुत सारे बन रहे हैं टू हैव दोज. बट वो पीना और वो साल तक पी के और उसका कुछ 20% अफेक्ट आना, डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड कितना अच्छा है, अनलाइक ये एक ही बार करके ऑन द स्पॉट प्लम्प हो जाता है. So that is the effect of fillers. Okay, so it's a same day procedure. Same day. It is like cheek fillers को 20 minutes रखते हैं, अंडर आई फिलर्स को 30 minutes रखते हैं. दिस इज़ डन इन 10 minutes. बोटॉक्स टेक्स 10 minutes. सो दे आर लाइक अमेजिंग, एंड इसका सबसे ज़्यादा रश रहता है मेरे पास फॉर बोटॉक्स एंड फिलर्स. सो अगेन दे कम अंडर एंटी एजिंग थेरेपीज. Nice. So people buy these products, a lot of these products by using by seeing advertisement again. True. So अगर मुझे ये सब चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल देर आर 2 situations. एक तो मैं आई एम नॉट अवेयर कि मुझे कोई प्रॉब्लम भी है. सेकेंड थिंग इज़ कि मुझे पता है मुझे क्या प्रॉब्लम है, आई नो कि इसका क्योर भी क्या है, बट मैं उसको डायरेक्ट बाय कर रही हूँ. जैसे मैं कोलाजन के प्रोडक्ट्स बाय कर रही हूँ, या फिर सम पीपल से, जैसे आपने रेटिनॉल बताया कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, इसके लिए तुम डायरेक्ट खरीद के रेटिनॉल लगा लो, कि हम खुद ही डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं काइंड ऑफ थिंग. तो इज़ इट
वो वैसे भी काम करता है क्या कि हम डायरेक्ट ही लेके खा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, वट एवर वी आर डूइंग? नहीं, मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि एक चीज़ हम बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा ओरल जो कि स्किन को ख़राब करेगी, रेटिनो और एनी सीरम्स। दूसरी बात कर रहे हैं हम इंट्रा ओरल, जो कि पी के कल को उसमें क्या इंग्रेडिएंट है वो सूट कर रहा था, आपकी बॉडी टाइप। आपको याद है पुरानी बॉडी टाइप्स में आयुर्वेदा में बोलते होते थे दैट पिटा बॉडी एंड वासा, राइट? तो वो डिपेंड करता है हमारी बॉडी में हीट कंटेंट कैसा है, क्या हमारी वार्म, हमें कितनी बार हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कितनी है, हमारा गट हेल्दी है या नहीं है। और अगर किसी का गट हेल्दी नहीं है और उसने कोलेजन पाउडर पी लिया विच इज़ अगेन अ टाइप ऑफ प्रोटीन, वो हार्म करेगा। That's the reason always and always consult your diabetic panel, your diet panel, your right doctor to use any kind of products. Maybe आप consume कर रहे हो, maybe आप कुछ extra orally apply कर रहे हो. Okay, so another important thing is costing. How much generally does it cost? अगर किसी को अपने फेस पे मेजरली हम अपने फेस ही ज़्यादा एक्सपोज करते हैं, यही हमारे प्रेजेंटेशन में बहुत 90-80 मे बी 90% आई वुड से हमारा फेस का इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर किसी को अवेयरनेस है, दे वांट टू डू दैट एज वेल, तो जनरली बोटॉक्स एंड फिलर हाउ मच डू दे कॉस्ट? सी द गुड ब्रांड्स, अगर हम बात करें अच्छे ब्रांड्स की जो कि काम भी करते हैं, सो बोटॉक्स स्टार्ट्स एज लो एज 15,000 फॉर लाइक एनी वन एरिया। अब बोटॉक्स काम करते हैं ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स। तो अभी अगर हमने क्रोज फीट लिए, ये वाले कम यूनिट है तो वो कम चार्ज हो जाता है, राइट? इट इज़ लाइक कॉस्टिंग समटाइम्स इज़ पर यूनिट एंड समटाइम्स इट्स पर एरिया। सो एज लो एज 12 to 15,000 में बोटॉक्स स्टार्ट हो जाता है, डिपेंडिंग कि हमारे कितने यूनिट्स यूज़ हो रहे हैं। फिलर्स कम इन सिरिंजेस, दैट इज़ 1 ml सिरिंज। तो 1 ml की कॉस्ट स्टार्ट हो जाती है 18 to 20,000। तो अगर जो ज़्यादा एरियाज़ हैं, जैसे अंडर आई एरियाज़ में ज़्यादा यूज़ होता है, तो उसके हिसाब से हम कॉस्टिंग लेते हैं। अगर 1.5 फिलर यूज़ हुआ या 2 हुआ, ये छोटे एरियाज़ हैं, इसमें 1 फिलर से सारा हो जाता है, चीक लिफ्ट 1 फिलर से। सो वी ट्राई मेकिंग अ वेरी गुड पैकेज फॉर पेशेंट्स। कई बार क्या होता है, कोई पेशेंट पैकेज बुक कर लेता है 4-5 सिटिंग्स का, तो इकट्ठे मटेरियल पे हमें डिस्काउंट आ जाता है। सो वी इवेंचुअली गिव डिस्काउंट्स टू आवर पेशेंट्स। Okay, so generally it starts from 12 to 15,000 somewhere. बोटॉक्स। Okay, got it. So you told us about Botox and fillers. आपने इसका कॉस्टिंग भी बताया, कैसे किसको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, all explained very well. So now I have another question. For example, if I went for this treatment and जैसे आपने बताया कि generally we don't have, it's not a one time procedure. आपको 1 साल में 3 या 4 बार ये लेना होता है अगर आपको सेम उसी रिजल्ट्स पे रहना है। तो अभी जैसे मैंने बोटॉक्स फिलर कराया, इफ़ आई डोंट डू दैट नेक्स्ट टाइम, सो माई स्किन विल बी इन माई प्रेजेंट लाइक ओल्ड सिचुएशन, और इज इट गो वर्स इफ़ यू आर नॉट गेटिंग इट डन बैक, राइट? देखिए, जो हमने 1 से 2 सेटिंग्स में जितना हमने उसको एनहांस या ब्यूटिफाई कर दिया होगा, वो वहीं तक रहेगा। तो जब हम स्टॉप कर देंगे वो वहीं रहेगा। विद इंक्रीजिंग टाइम में भी 6 महीने साल बाद यू विल कम बैक टू योर सेम स्किन। और वो डिपेंड करता है आपकी स्किन टाइप कैसी है, आपकी एजिंग कैसी है, आपका बॉडी सिस्टम कैसा है। जैसे कि सबका इम्यूनिटी जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, इट्स डिफरेंट, और हमारे ओवरऑल बॉडी सिस्टम इज़ डिफरेंट। बट यूजुअली वो कम बैक टू द सेम स्टेज लाइक विद इन अ स्पैन ऑफ 6 months इट कम्स बैक। बट कुछ भी हार्म नहीं होता है, जो करा वो वैसा ही हुआ। डिपेंड करा आपने कुछ प्रोडक्ट्स और वो चीज़ें बहुत अच्छे से लगाई, जैसे मैंने बताया आपने रेजीम बहुत अच्छा फॉलो करा, तो मे बी 8-10 months तक वो सेम रहे। ओके। और एक आपने लेटली एक वीडियो देखा होगा आलिया भट्ट का, बहुत वायरल हुआ था। आई थिंक उन्होंने लिप फिलर कुछ कराया था एंड देन हर स्माइल गॉट इम्पैक्टेड अलॉट। तो आर देयर चांसेस ऑफ गोइंग इट रॉन्ग एज वेल, ये प्रोसीजर? सो यू नो व्हाट इज़ दैट कॉल्ड, दैट वी डू सो मच इन अ क्लिनिक, दैट इज़ कॉल्ड गमी स्माइल करेक्शन। तो उसमें क्या होता है, गमी स्माइल करेक्शन इज़ यूजुअली डन विद बोटॉक्स। अगर वो सही जगह पे इंजेक्ट नहीं हुआ तो स्माइल एनहांस हो जाती है, डिप्राइव हो जाती है। तो उससे क्या होता है, लिप फॉल कर जाता है, लिप ऊपर नीचे हो जाता है। एक तो ये रीज़न होता है। दूसरा, किसी ने लिप फिलर्स कंटूर कराए एंड रॉन्ग लिप फिलर्स की, मतलब वो बहुत ज़्यादा हो गए या इवन अंडर भी हो गए। तो अंडर से क्या होगा, एक तरफ से लिप कंटूर हो जाएगा, दूसरी तरफ से फॉल डाउन कर जाएगा।
ओवर से क्या हो जाएगा, कोई आएगा रशियन लिप्स करने और वो बन जाएंगे कुछ और ही लिप्स, एंड दैट टेक्स टाइम्स टू गो बैक. सी देयर इज़ अ टेक्नोलॉजी इन फिलर्स जिसमें वी यूज़ हाइलुरोनिडेज टू एक्सट्रैक्ट आउट द फिलर बैक, कि कहीं ज़्यादा हो गया तो फिर इसको निकाल ले. बट क्योंकि ये प्रोटीन है, समटाइम्स इट इवैक्यूएट्स मोर देन द अमाउंट ऑफ फिलर रिक्वायर्ड. मैंने लिप फिलर करा किसी का बहुत अच्छा, किसी को लगा कि बहुत ज़्यादा हो गया, बट जब हम उसको निकालेंगे इवैक्यूएट, वो ज़्यादा निकल आएगा, तो अनइवन हो जाएगा, पूरा लिप स्ट्रक्चर विल गो अनइवन. So ideally, right injector, right amount of filler and right brand of the filler is very important. Okay. Okay, ma'am. Now we will talk about another very important thing, which is pigmentation, because a lot of women go through this problem, and it's very generic in India, or maybe I don't know about other countries, but generally women go through this, and maybe after their 30s, it's very common. Very common. Pigmentation and melasma, we call it, right? So please tell about this, कि what is this and how can we cure it? ये एक ऐसी चीज़ है जो कि I'll say more than 70% of the population in North they are facing all this. तो pigmentation सबसे पहले, first is pigmentation 1 primary. Secondary goes untreated pigmentation leads to hyperpigmentation. Untreated hyperpigmentation turns into dark brown patches, which is you are saying you call melasma. तो ये तीनों ही अपने उसमें बहुत ही मतलब ऐसे जकड़ने वाली चीज़ है, और बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं. अगेन द प्राइमरी रीज़न इज़ ओनली एंड ओनली दे आर नॉट यूजिंग SPF. पहली चीज़, धूप से पहले तो बचा ही नहीं करा, अर्ली 20s 30s में बढ़ता गया, वो फिर स्किन टोन ख़राब हुई, फिर पिगमेंटेशन. देन द सेकेंड रीज़न, फर्स्ट जो स्किन वाला ये रीज़न होता है, सेकेंडली इज़ द हार्मोनल प्री प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड पोस्ट प्रेगनेंसी. तो प्री प्रेगनेंसी में अगर किसी के स्टार्ट हुआ, उस टाइम में अगर हमारे पास क्लाइंट्स आ जाते हैं, वी टेल देम अ वेरी गुड रेजीम एंड वी स्टार्ट देयर ट्रीटमेंट्स विच आर नॉन, ऐसा नहीं होता कि हमने उस पर कुछ लेज़र डालना होता है कि हम प्रेगनेंसी में नहीं यूज़ कर सकते, राइट. सो अगेन दैट इज़ पोस्ट प्रेगनेंसी, ये वाले टाइम में. थर्ड इज़ अगेन दैट PCOD, जो कि मेजरली फीमेल्स आज के टाइम में ड्यू टू सेडेंट्री लाइफस्टाइल फेस कर रही है. लास्टली फोर्थ इज़ TSH, जिनका बड़ा होता है, उससे क्या होता है, वेट इंक्रीज़ हो जाता है. तो यूजुअली जिनके वेट इंक्रीज़ हुए होते हैं उनकी मेजर पैचेस होते हैं इंटीमेट एरियाज़ पे भी. इवन यू गेट सो मच ऑफ melasma अंडर, जो अंडर आर्म डार्क पैचेस होते हैं, दे आर ऑल एंड ऑल melasma पैचेस, राइट. इसका बहुत अच्छी ट्रीटमेंट्स हैं हमारे पास विच आर US FDA ट्रीटमेंट्स. वी कंबाइन लेज़र टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद सर्टेन काइंड ऑफ पील्स विच आर इम्पोर्टेड फ्रॉम US, एंड दे आर अमेजिंग ट्रीटमेंट्स प्रोवाइडेड. अगेन वही हमने प्रॉब्लम को पकड़ा, सबसे पहले लाइफस्टाइल ठीक करा, खा ही सही नहीं रहे, इसमें कुछ फूड्स होते हैं जो काम करते हैं, और एक अच्छा वेल बैलेंस्ड डाइट. पानी, अगर कोई पानी नहीं पी रहा है, फॉरगेट अबाउट स्किन, उसकी पूरी बॉडी में ही बहुत जल्दी बहुत नुकसान होने वाला है. सो हाइड्रेशन इज़ द की. थर्ड कम्स द एग्जैक्ट डायग्नोसिस ऑफ द डिज़ीज़ की, ये किस वजह से हुआ है. थायराइड है तो मेडिकेशन होगा, PCOD है तो मेडिकेशन होगा, और प्रेगनेंसी में है तो वो थोड़े टाइम में कम हो जाता है. एंड देन वी स्टार्ट विद आवर ट्रीटमेंट्स, एंड ऑलमोस्ट यू कैन सी ऑल द बिफोर आफ्टर केसेस इन आवर क्लिनिक. ऑलमोस्ट इट गोज़ टू 85-90%. हम कभी भी पेशेंट्स को ऐसा कमिट नहीं करते हैं कि ये ओवरनाइट ख़त्म हो जाए. इट टेक्स 3 months साइकिल, डिपेंड्स, एक्यूट है, क्रॉनिक है, बहुत पुराना है, बट विद इन 3 to 4 months यूजिंग द राइट रेजीम. स्किन केयर इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और वो चेंज हो जाता है. राइट क्रीम्स आ जाती हैं, रेटिनॉल क्रीम्स आ जाती हैं. इट गोज़ ऑलमोस्ट 85-90%. ओके, सो यू आर सेइंग इट्स क्योरेबल. लाइक अगर Yes. किसी को पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन है, अगर उसका वो सही से ट्रीटमेंट करवाएं, देन इट कैन बी क्योर्ड. Cured, yes. Okay, right. Okay, ma'am. So one thing I missed, which is drips you told about. What are these drips? सो ड्रिप्स क्या होती हैं? यूजुअली पेशेंट्स कम अस फॉर फुल बॉडी वाइटनिंग. ऐसा बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि हमें अपना कलर कॉम्प्लेक्शन ठीक कराना है, तो IV ड्रिप्स दे आर गिवन इन द ब्लड स्ट्रीम IV के साथ. तो जैसे कि वेट लॉस ड्रिप्स होते हैं तो उसमें वेट लॉस वाली चीज़ें डाली होती हैं. हेयर लॉस वाली होती हैं तो बेसिकली उसमें हेयर लॉस वाले जो इंक्रीज़ करते हैं एलिमेंट्स वो डाले जाते हैं. एंड देन मोस्ट पॉपुलर इज़ ग्लूटाथियोन, IV ग्लूटाथियोन ड्रिप्स.
इसमें भी हम पहले ब्लड टेस्ट कराते हैं, कोई एलर्जी तो नहीं है किसी में, एंड देन वी इंजेक्ट यूजुअली ट्वाइस और थ्राइस अ वीक. सो ओवर अ स्पैन ऑफ 1 मंथ में लोगों को बहुत फ़र्क आना शुरू हो जाता है. बट मैं यहाँ पे सबको ये बताना चाहूँगी दैट पीपल आस्क अस इज़ इट फुल बॉडी वाइटनिंग? नो, इट डिपेंड्स, क्योंकि जो वाइटनिंग वाला पार्ट जो ज़्यादा एम्फोसाइज होता है और जो काम करता है वो यहाँ तक करता है. नीचे वाइटनिंग होती है बॉडी में बट इट इज़ लेस. ऐसा नहीं होगा कि कोई रॉन्ग प्रॉमिस कर दे कि हम पूरे ही फेयर हो गए, कि हम लोग कुछ 5 कॉम्प्लेक्शन पीछे हो गए. नहीं, इट डिपेंड्स. सो और उसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना होता. 1 महीना लिया, फिर हम 15 डेज़ छुड़वा देते हैं, देन अगेन वी स्टार्ट. सो इट इज़ लाइक दिस, 3 to 4 months, मैक्सिमम इज 6 months, एंड देन वी लीव फॉर 6 months. इट्स लाइक दिस. तो ऐसा नहीं है कि हमें फुल बॉडी ऊपर से नीचे तक एकदम 5 शेड्स हो गया. नहीं, आपका कलर काफ़ी हद तक इम्प्रूव होगा अलॉन्ग विद सीरम्स एंड ये सारी चीज़ें दी जाएंगी. बट इट हैपन्स, इट इम्पैक्ट्स वेरी वेल. एंड इसमें लोगों का, मेरे पास इतने वीडियोस बन के आते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हो गया बिकॉज दे हैव स्टार्टेड लुकिंग बेटर, और राइट प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, राइट खा रहे हैं. तो कुछ भी कराने से पहले माई मेजर एम्फोसिस इज़ ऑन इनसाइड व्हाट यू आर ईटिंग डाइट, एंड नेक्स्ट इज स्किन केयर. उसके साथ साथ ट्रीटमेंट हम शुरू करते हैं. कई बार हम ट्रीटमेंट शुरू कर दें और उसने SPF नहीं लगाया तो वो रिवर्स भी हो जाता है. हमने किसी की केमिकल पील्स करी और उसने SPF नहीं लगाया और वो धूप में चला गया तो वो रिवर्स बाइंडिंग हो जाती है और स्किन ख़राब हो जाती है, डार्क हो जाती है. दैट्स द रीज़न इनसाइड व्हाट यू आर ईटिंग एंड आउटसाइड योर स्किन केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, so drips are majorly for your color ग्लो lightening. हाइड्रेशन, ग्लो हाइड्रेशन, यस, वाइटनिंग, एंड देन हेयर लॉस के लिए भी आती है IV ड्रिप्स आती हैं, फैट लॉस के लिए भी IV ड्रिप्स आती हैं. ओके, जैसे हमें अपनी स्किन को रिलैक्स करना है. Yes. कलर करेक्शन तो डिफरेंट चीज़ हुई ना. कलर करेक्शन, No. Color correction comes in semi-permanent makeup. That is Okay. something different. Okay. That also we do. That is microblading. वो brows और lips होता है जो है ना, और BB glow therapies होती है, ये internally होती हैं. So it's basically whitening. okay, skin whitening. Skin whitening. Okay, got it. Now next, I think we have covered most of the things, including hair transplant, lip fillers, or maybe other fillers, Botox, and pigmentation, melasma. But ma'am, because you do treatments for these things, are there any medical conditions like on which it depends? क्या or anybody can go for these treatments? For example, if somebody is having any disease, for example diabetes, thyroid, so it depends on that thing, और कोई भी चीज़ें नहीं, देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट्स तो एक अलग बिल्कुल टॉपिक आ गया. उसमें तो प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री इज़ इवेलुएटेड, और द ब्लड टेस्ट, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, BP, शुगर, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, दैट्स अ सेपरेट कैटेगरी. इफ़ यू टॉक अबाउट दीज एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स, येस, वी एक्चुअली इवेलुएट BP एंड शुगर, और एनी मेडिकल हिस्ट्री दैट इंक्लूड्स एनी ड्रग एलर्जी टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. कई बार होता है कि किसी दवाई से परहेज़ तो नहीं है, या किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, और BP एंड शुगर हम लोग ये इवैल्यूएट करते हैं. एंड समटाइम्स अगर किसी की कुछ सर्जरी लाइक कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, किसी की कोई सर्जरी के लिए गया हुआ है, ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, सो वी चेक विद द मेडिकल प्रैक्टिशनर दैट ही और शी इज़ नॉट एलर्जिक टू एनीथिंग. सो बोटॉक्स इन फिलर्स एज इट इज़ मिनिमली इन्वेसिव, हमारा बहुत कम नीडल डेप्थ होता है, तो यूजुअली ये वाले सारे प्रोटोकॉल्स अगर नॉर्मल हों तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती. ठीक है. और अगर कोई बोटॉक्स फिलर और स्किन के कोई भी ट्रीटमेंट कराता है कॉस्मेटोलॉजिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट से, तो उनको कोई प्रिकॉशंस भी लेने होते हैं, और दे कैन हैव अ नॉर्मल लाइफ की कहीं आ प्रिकॉशंस नहीं, बोटॉक्स के लिए अलग प्रिकॉशंस होते हैं. बताया जाता है कि आप इतनी देर के लिए जिम नहीं जाओगे, यू हैव टू रिलैक्स योर मसल्स, कोई भी हैवी एक्टिविटी, डम्बल्स और रनिंग, ये सब नहीं करोगे. फिलर्स के लिए थोड़ा सा अलग होता है, बट आप यूजुअली दीज आर ऑल लंच टाइम प्रोसीजर्स. वो आप बिल्कुल स्विच ऑन कर जाते हो, आप एकदम अपना ऑफिस जा सकते हो, यू कैन मेंटेन अ नॉर्मल रूटीन. ओके. लास्टली वी विल टॉक अबाउट इंच लॉस और फैट लॉस, जो मैंने अभी देखा है. देयर इज़ अ ट्रीटमेंट फॉर दैट एज वेल. सो व्हाट इज़ दैट एंड इज़ इट सेफ और एनीबडी कैन गो फॉर दैट? ओके, तो हमारे यहाँ पे इट्स अ वेट लॉस क्लिनिक विच हैज़ 3 different sections. फर्स्ट इज़ द डाइट पैनल, वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड इज़ द नॉन सर्जिकल टेक्निक्स, कि हम नॉन सर्जिकल के अंडर क्या क्या कर सकते हैं. एंड थर्ड इज़ द सर्जिकल, फॉर विच देयर इज़ अ प्लास्टिक सर्जन. तो चाहे मैं नॉन सर्जिकल कर रही हूँ या सर्जिकल कर रही हूँ, उससे पहले आई विल ऑलवेज आइडेंटिफाई द पेशेंट कि ये कैपेबल है
ये प्रोसीजर जाने के लिए फॉर दैट वी हैव टू चेक हिज कंप्लीट मेटाबॉलिक प्रोफाइल, उनका वेट एक्यूट क्रॉनिक कितना रहा है, और पहले उनको मैं डाइट पे लेके आती हूँ, क्योंकि आज मैं उनका कुछ लाइपोसक्शन कर दूँगी या कैविटेशन कर दूँगी और कल को देयर लाइफस्टाइल इज़ नॉट हेल्दी एंड दे आर गोइंग अगेन ईटिंग दैट रॉ जंक फूड, उसका कोई फ़ायदा नहीं है. सो फर्स्ट इज़ द डाइट प्लान जो हम देते हैं, एंड वी ट्राई रिड्यूसिंग एवरीवन्स वेट थ्रू नॉन सर्जिकल ओनली. नॉन सर्जिकल में वी हैव कैविटेशन, वी हैव क्रायोलाइपोलाइसिस. कैविटेशन काम करता है इंचेस पे, क्रायो काम करता है एकदम कंटूरिंग, दैट इज़ कॉल्ड बॉडी शेपिंग, उसके ऊपर. देन थर्ड इज़ प्रो बैलेंसर. प्रो बैलेंसर इज़ अ वेरी गुड टेक्निक जिसमें हम पेशेंट को रैप करके भेज देते हैं, एंड इट इज़ जस्ट, आप सोचो कि आप ऊपर से बंद होके एक ट्रेडमिल चला रहे हो. सो इवन दैट इज़ अ काइंड ऑफ वेट लॉस थेरेपी जिसमें आपका लॉस ऑफ वाटर काफ़ी ज़्यादा होता है. एंड लास्टली इज़ द लाइपोसक्शन, ये जो सर्जिकल आ गया. तो सर्जिकल में लाइपोसक्शन, एब्डोमिनोप्लास्टी, एंड देन इज़ कूल स्कल्पटिंग, बहुत सारी चीज़ें होती है. बट पहले डाइट, और फिर देखते हैं कि कौन सा पेशेंट किस वाले उसमें फ़िट होता है. अगेन ही और शी हैज़ टू गो अंडर अ पैनल ऑफ टेस्ट, उनका पूरा लिपिड बायो पूरा प्रोफाइल देख के, एंड देन वी स्टार्ट ऑल दिस. सो वेट लॉस का बहुत ज़्यादा है आजकल, राइट, और कुछ देर लोग करते हैं फिर छोड़ देते हैं. सो दैट्स द रीज़न वी डोंट जंप इनटू सर्जरी नहीं. सर्जरी तो क्योंकि हर कोई पेशेंट एलिजिबल ही नहीं है सीइंग द टेस्ट. वी ट्राई डूइंग दैट विद नॉन सर्जिकल, अनट्रीटेड नॉन सर्जिकल एथिकली अगर नहीं हुआ, देन वी प्लान अप फॉर सर्जरीज. Okay, so for example, if somebody wants to lose their fat, तो अगर वो जिम एक्सरसाइज या हेल्दी तो एज यू ऑलरेडी क्लियर दिस डाउट ऑफ माइंड कि हेल्दी तो आपको डाइट प्लान तो आप भी दोगे ही उनको. For sure. फूड डाइट तो दे हैव टू कंट्रोल एनी वे. सो अगर किसी को जल्दी से करना है और वो एक्सरसाइज ये वो ज़्यादा लॉन्ग मतलब शॉर्टकट चाहिए, तो वो फिर देन दे कैन go for plastic surgery. go for this thing. Yes. Okay, got it. Thank you so much, ma'am, for unfolding your years of knowledge and experience with Thank us. you. And I hope people will get benefit out of this. So Sure, thank you so much. Sure. Thank you.